The Waqf Amendment Bill sailed through the Lok Sabha early on Thursday after a marathon 12-hour debate that saw the government and the opposition go toe-to-toe on the contentious bill well past midnight. The debate was intense, but the numerical strength of the government had the last word. Around 2 a.m., the bill was passed by 288 by 232 votes. The proposed legislation, which will be tabled in Rajya Sabha later today, aims to amend the 1995 law governing Waqf properties. But the contentious provision in the amended bill include mandatory inclusion of 2 non-Muslim members in the Central Waqf Council and Waqf boards. There is also the stipulation that individuals who practice Islam for at least 5 years only can donate properties to Waqf. Also, under the proposed law, government property identified as Waqf will cease to belong to it and the local collector will determine its ownership. The opposition, which contended that the Joint Parliamentary Committee set up to examine the bill did not consider their suggestions, argued that the bill was unconstitutional. The Congress declared the government was trying to defame and disenfranchise minorities and staging and 4-day assault on the Constitution. AIMIM chief Azharuddin Owaisi, in a symbolic protest, said he was tearing up the law like Mahatma Gandhi did with British law in South Africa. The government contended that the bill was about property, its management, and not religion. Huge lands and properties have been taken over the Waqf, aided by the Congress appeasement politics. There were large-scale irregularities that did not allow Waqf property to benefit women and children, which the amended law would do. Also, the Waqf bill, the PJP said, was developed after consulting a large section of people, and it has received the support of non-Muslim minorities. Speaking in favor of the bill, Union Minister Amit Shah presented a long list of properties that he said were given for Waqf. The list included land belonging to temples, other religions, the government and others. While introducing the bill, Union Minister Kiren Rijiju cited a case going on since 1970 in Delhi involved several properties, including the old Parliament building. Shadbat Shams, chairman of the Uttarakhand Waqf Board, expressed his optimism about the bill's potential impact on community. He said the faces of poor Muslims are blossoming like a lotus because of the Waqf Amendment Bill has been passed. Good days are coming for poor Muslims as they are ready to join the mainstream. Meanwhile, PJP's Rajya Sabha MP Dinesh Sharma today lauded the historic passage of the controversial bill in the Lok Sabha and expressed confidence that it will usher in a new era of progress and equality. Sharma, addressing the media, emphasized the positive implications of the bill, especially for India's Muslim brothers and economically disadvantaged communities. चेहरे कमल की तरह खिल चुके हैं, चेहरे पर मुस्कान है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वो गरीब मुसलमान, वो पसमानदा मुसलमान जिनको हमेशा मुख्यधारा से दूर रखा गया, आज वो मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आतुर है, तैयार है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस गरीब मुसलमान की भी अब अच्छे दिन आएंगे। पूरे अमीर लोग जो वक्फ के ऊपर गरीबों का हक मार के बैठे थे, उनसे उनका हक लिया जाएगा और गरीब मुसलमानों को अब उनका हक दिया जाएगा। ये देश की संपत्ति है, लगाम लगाई है वक्फ बोर्ड की ज्यादतियों के ऊपर और उन वक्फ माफियाओं के ऊपर जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने वक्फ का शोषण किया है, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को मारा है, जिन्होंने यतीमों के, मिस्कीनों के, बेवाओं के हकों को मारा है। अब ये हक जो गरीबों का हक था, जो यतीमों का हक था, जो मिस्कीनों का हक था, जो बुजुर्गों का हक था, अब ये उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, किरण रिजिजू जी को और पूरे सहयोगी एनडीए के सहयोगी दलों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। मैं इस आज का जो दिन रहा, ये ऐतिहासिक दिन रहा और इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए ये आर्थिक क्रांति के रूप में याद रखा जाएगा। ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास का ये वो दिन था जिसमें लोकसभा ने पारित किया और मैं कह सकता हूं कि आज राज्यसभा उसको परिभाषित भी कर रहा है और इस बिल के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत खासतौर से मुस्लिम बंधुओं के लिए होने वाली है। ये गरीब, ये पिछड़े, ये वंचित, ये वो लोग, ये आगा खानी, ये अहमदिया, ये बोहरा समाज जो अलग अलग थे, शिया सुन्नी, सभी के लिए
ये एक वरदान साबित होकर आने वाला है। ये औकाफ के प्रशासन में सुधार करने वाला ये बिल है और ये बिल एक तरीके से बोर्ड की असाधारण और मनमानी शक्तियों को केवल तार्किक बना रहा है। एक भी ईदगाह, दरगाह, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल पे वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, संपत्ति वापस नहीं ले रहा है, केवल ये इसको तार्किक बना रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 153 करोड़ की आमदनी अब इतनी बड़ी संपत्ति से जो रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरे नंबर की है, उससे केवल 153 करोड़ की आमदनी हो रही थी। बाकी किसके पास जा रही थी? जो लोग बिल्डर्स का काम, माफियागिरी का काम, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, वो आज राजनीतिक दलों का चोला पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, पहले भी 129 संशोधन इसमें हो चुके थे और ये बात सही है कि बगैर सुने आप बेदखल कर दो, बगैर आप कोई चीज का साबित किए और आप संपत्ति कर दो मेरी है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे आज तमाम चीजों पर वो किया है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं कि ये वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने संविधान को बदला है सांप्रदायिकता के लिए। आपने साहबानो केस में राजीव गांधी जी के पास बहुमत था ना, उन्होंने इसको बदला। उस समय के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया। तब जानते हैं उनको बहुत बड़े नेता को भेजा आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास, कांग्रेस के लोगों ने। और उन नेता ने जो आरिफ मोहम्मद खान साहब से कहा, वो कहा कि मुसलमान हमें वोट देते हैं, ये सच है, हम उनके सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, वह गटर में पड़े रहे तो पड़े रहना चाहते तो पड़े रहे, हमें उनकी क्या फिक्र है, वो हमारे वोटर हैं, हमें तो जो चाह रहे वो करना है। कुछ लोग यानी वो रिफॉर्मर नहीं है, मोदी जी रिफॉर्मर भी है, परफॉर्मर भी है। इसलिए ये ला रहे हैं कि ये वोट के तुष्टीकरण के लिए नहीं, ये मुस्लिम के सशक्तिकरण के लिए ये बिल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक तरीके से जो आज तक एक भी इन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। अब इससे जो इनकम आएगी 153 करोड़ नहीं आएगी, 12,000 करोड़ की इनकम होगी अगर इसका सदुपयोग किया गया। विधवा, ये तलाकशुदा महिलाएं, ये वृद्ध, उनके लिए अनाथालय, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए स्कूलों के लिए, उसके के साथ साथ अस्पताल के लिए, ये सारे प्रयोजन जो वक्त में लिखे हैं ये नहीं होते थे, अब वो होने वाले हैं। इसलिए इनको दर्द है कि जो दुकानें थी ना भ्रष्टाचार की, वो बंद होंगी। और एक तरीके से कि आज ये एक जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान का नारा देने वाले जो नफरत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुकान खुलने से पहले बंद हो जाएगी जब राज्यसभा में पास हो जाएगा। जी सर, इमरान, ये ब्लैक डे है मुस्लिम्स के लिए, जो ये बिल लाया जा रहा है आज राज्यसभा। मैं समझता हूं ये गोल्डन डे है और एक सुनहरी सुबह का ये आगाज है मुस्लिम के जीवन में, जो उनके भावनाओं से खेलते रहे हैं, जो उनकी संपत्तियों पर अपना हक जमा कर जो खुद से करोड़पति हो रहे लोग थे, उनके लिए काला दिन है। लेकिन जो मुस्लिम है, जो गरीब तबका है, पिछड़ा है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए एक नई सुबह का आगाज।